بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم جانیں گے نبی اور رسولوں کے بارے میں کہ یہ کون شخصیات ہوتی ہیں اور ان کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں، اور نبی اور رسولوں میں فرق کیا ہے، اور نبی اور رسول کہتے کسے ہیں۔ ہم یہ بھی جانیں گے دوستو کہ ہم مسلمانوں کو ان کے بارے میں کیا نظریہ رکھنا چاہیے، اور آج ہم بات کریں گے کہ علم غیب کیا ہوتا ہے، معجزہ کسے کہتے ہیں، آسمانی کتابوں سے کیا مراد ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ڈیفینیشن آف نبی اینڈ رسول۔ نبی وہ انسان ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان بھیجتا ہے اپنے احکام پہنچانے کے لیے، یعنی اپنے آرڈرز پہنچانے کے لیے۔ تو سارے نبی انسانوں میں سے ہوئے اور مرد ہی نبی ہوئے ہیں، اور انہی نبیوں میں سے کچھ لوگ رسول بھی ہوئے ہیں۔ نبیوں کی سنکھیا کم و بیش 1,24,000 ہے اور رسولوں کی سنکھیا 315 ہے۔ ڈفرینس بٹوین نبی اینڈ رسول۔ تو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ نبی وہ انسان ہوتا ہے جسے اللہ پاک لوگوں کے بیچ بھیجتا ہے اپنے آدیش پہنچانے کے لیے، اور انہی نبیوں میں سے کچھ نبی ایسے ہیں جنہیں ایک کتاب، نئی شریعت دے کر بھیجا جاتا ہے، انہیں رسول کہا جاتا ہے۔ تو نبی اور رسول میں یہ بیسک فرق ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو نئی کتاب لے کر آتا ہے یا نئی شریعت لے کر آیا، یا وہ کفار یعنی نان مسلمز کی طرف شروع میں بھیجا جائے، جسے نوح علیہ السلام کو کفار کی طرف بھیجا گیا۔ اور صرف نبی وہ ہوتے ہیں جو نئی شریعت نہیں لے کر آتے، بلکہ جو پہلے سے شریعت چل رہی ہے اس کی تبلیغ کرتے ہیں، اس کی پریچنگ کرتے ہیں، اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر رسول تو نبی ہوتا ہے، پر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ فرشتوں میں بھی رسول ہوتے ہیں جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام، لیکن فرشتوں میں جو رسول ہیں اور انسانوں میں جو رسول ہیں ان میں فرق ہے۔ انسانوں میں جو رسول ہیں وہ تو وہی ہیں جو نئی کتاب لے کر آئے، نئی شریعت لے کر آئے اور وہ لوگوں کے پاس بھیجے جاتے ہیں۔ اور فرشتوں میں جو رسول ہیں ان کو رسول کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری میننگ کے حساب سے انہیں رسول کہا جاتا ہے کہ رسول کا مطلب ہوتا ہے پیغام، میسج لانے والا، نمائندہ۔ تو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر دوسرے فرشتوں کے پاس جاتے ہیں یا نبیوں کے پاس آتے ہیں تو انہیں رسول اس میننگ میں کہا جاتا ہے۔ ان کا مرتبہ انسانوں کے نبیوں سے کم ہوتا ہے لیکن بہت بلند ہوتا ہے۔ نبیوں اور رسولوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اترتی ہے۔ وحی اس کلام کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نبی پر نازل ہو۔ بیسیکلی اس میں اللہ اپنے نبیوں کو اپنے آدیش بتاتا ہے کہ اب آپ کو کیا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ جو بھی احکام اللہ تعالیٰ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے وہ پہلے وحی کے ذریعے نبیوں تک پہنچتی ہے اور پھر نبی لوگوں کو بتاتے ہیں۔ کبھی تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر آتے ہیں نبی اور رسولوں کے پاس، اور کبھی خواب میں ان کو وحی ریویل ہوتی ہے، اور کبھی نبیوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کوئی بات ڈال دیتا ہے۔ یہ مختلف طریقے ہیں وحی پہنچانے کے۔ شریعت کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی تھیوری لے کر آئے ہیں اسے شریعت کہا جاتا ہے، اور جو بھی آپ نے پریکٹیکل کر کے دکھایا اسے طریقت کہتے ہیں۔ تو سمجھ لیجئے جو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عقائد اور اعمال کے مطابق تعلیم لے کر آئے ہیں اس تعلیم کا نام ہوتا ہے شریعت۔ شریعت میں ہر فیلڈ کے لیے گائیڈنس دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو بزنس کرنا ہے تو اس میں کون کون سی چیزوں کا بزنس کر سکتے ہیں اور کن کن چیزوں کی تجارت نہیں کرنی ہے، کسی پرٹیکولر بزنس میں کیا کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپنی طرف سے لگا سکتے ہیں اور کیا کیا نہیں لگائی جا سکتی، اور جیسے انٹرسٹ، لیٹ فی، پینلٹی نہیں لگائی جا سکتی۔ اسی طرح آپ کو اگر نکاح کرنا ہے تو کیسے کیا جائے، اور ڈیورس لینے کے لیے کیا کیا کنڈیشنز ہیں، اور طلاق کیسے ملے گی، ایکسیٹرا۔ سب سے پہلے نبی جو اس دنیا میں تشریف لائے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ یہ دنیا کے پہلے انسان بھی ہیں۔ پھر دیگر نبی بھی تشریف لائے جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور سب سے آخری نبی پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ جو یہ عہدہ ہے نبوت، یہ کسبی نہیں وہبی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص زیادہ عبادت و ریاضت کر کے، زیادہ نماز روزے پڑھ کے یہ منصب حاصل کر لے، بلکہ یہ صرف اللہ کی مہربانی سے ہی کسی کو ملتا ہے، وہ جس کو چاہے چن لے۔
हाँ, जिसको अल्लाह ताला नबी बनाना चाहता है उसको पहले से ही इन बुरी आदतों से दूर रखता है, छोटे बड़े गुनाहों से बचाता है, बुरी चीज़ों से दूर रखता है और लोगों के दरमियान उनको इज्जतदार रखता है। एक बार जिसे ये नबूवत का मनसब मिल गया फिर उससे कभी भी ये ओहदा छीना नहीं जाता, बल्कि वो हमेशा नबी ही रहता है। नबी और फरिश्ते मासूम होते हैं, यानी उनसे कभी भी कोई भी छोटा बड़ा गुनाह भूले से या जानबूझकर नहीं हो सकता। अल्लाह पाक उन्हें गुनाहों से बचाता है। अल्लाह ताला ने बहुत से नबियों पर मुख्तलिफ सहीफ़े और आसमानी किताबें नाजिल की, यानी जिब्रील अमीन के ज़रिए वही नाजिल हुई। और 4 आसमानी किताबें बहुत मशहूर हैं। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर रिवील हुई, इंजील जिसे बाइबल भी कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर रिवील हुई, और कुरान मजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सहीफ़े नाजिल हुई अल्लाह ताला की तरफ से, जिससे मालूम हुआ कि 4 किताबों के अलावा भी सहीफ़े अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुए, जिसमें कुछ नसीहतें, किसी में अहकाम वगैरह भी थे। इसी तरह नबी करीम ने बताया कि अल्लाह ने 104 किताबें नाजिल की, जिसमें हज़रत शीश अलैहिस्सलाम पर 50 सहीफ़े उतारी गई, हज़रत खुनूख अलैहिस्सलाम पर 30 सहीफ़े, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर 10 सहीफ़े नाजिल की गई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात से पहले 10 सहीफ़े नाजिल की गई और नाजिल की गई तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। हमको ये अकीदा रखना होगा कि अल्लाह पाक ने जितनी भी किताबें और सहीफ़े नाजिल की उन सब पर हमारा ईमान है, वो सब सच हैं और सही हैं। इनमें से बहुत से सहीफ़े तो ख़त्म ही हो गए, यानी मालूम नहीं कहाँ चले गए, उनकी हिफाजत नहीं हो सकी, और जो मौजूद भी हैं तो हमारा कुरान ये बता रहा है कि उसमें चेंजेस कर दिया गया है, यानी लोगों ने अपने मर्जी के मुताबिक उसमें घटा बढ़ा दिया। तो ये यहूदियों ने साजिश की कि जो पिछली किताबें थी उसमें तब्दीलियां की अपने फ़ायदे के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। तो अल्लाह ताला ने हमें इसके बारे में बता दिया। तो अब आप 100% नहीं कह सकते कि जो ये बात इसमें लिखी है ये अल्लाह की तरफ से है या इन लोगों ने इसमें तहरीफ की है। तो हमारा ये अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आसमानी किताबें और सहीफ़े जिस शक्ल में नाजिल की उस पर हमारा ईमान है। और आज जो बाइबल वगैरह हैं तो 32 तो बाइबल्स बना लिया गया है, और जो तौरात, ज़बूर हैं ये आपको पता है ये हिब्रू लैंग्वेज में थी, और फिर इसको अरेबिक में ट्रांसलेट किया गया और फिर दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। तो एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करने में आपको पता है कितनी तब्दीलियां हो जाती है, और ख़ुद कुरान हमें बता रहा है कि उन लोगों ने इसमें चेंजेस कर दिया था। लिहाजा मौजूदा जो ये किताबें हैं हम ये नहीं कहेंगे कि अल्लाह की किताबें हैं, बल्कि अल्लाह ताला की किताबें जिस शक्ल में नाजिल हुई थी उस पर यकीनन हमारा ईमान है। तो अब अगर हमारे सामने कोई पिछली आसमानी किताबें जिसमें चेंजेस कर दिया गया है कोई हमारे सामने पेश करता है तो हमें क्या कहना चाहिए? तो इसमें हुक्म यह है कि उसमें की अगर बात हमारे कुरान के अकॉर्डिंग दुरुस्त है तो हम कहेंगे कि हो सकता है कि ये अल्लाह का कलाम है। श्योरिटी के साथ ना माने लेकिन इनकार भी ना करें। और अगर उसमें की बात कुरान के अगेंस्ट है, कुरान के खिलाफ है, तो हम कहेंगे कि अल्लाह के वर्ड्स हो ही नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह के कलामों में आपस में टकराव नहीं हो सकता। और अगर मालूम ना हो कि कुरान के मुआफिक है या उसके खिलाफ, तो ना इनकार करे ना इकरार करे, बल्कि यूँ कहे कि अल्लाह ताला की तमाम किताबें जो नबियों पर नाजिल हुई उन सब पर हमारा ईमान है, वो सब सच है, हक है। पिछली जो किताबें थी वो सिर्फ नबी को याद रहती थी, उनके उम्मतियों को, उनके फॉलोवर्स को नहीं याद होती थी, इसीलिए उन किताबों की हिफाजत ना हो सकी और चेंजेस हो गए। लेकिन कुरान पाक ऐसी किताब है और अल्लाह पाक का ऐसा करम है कि हमारे 6-7 साल के बच्चे इस पूरी किताब को मेमोराइज कर लेते हैं, जिसमें तकरीबन 6666 आयात हैं। पिछली जो आसमानी किताबें अल्लाह ने नाजिल फरमाई वो क्योंकि एक पर्टिकुलर मुद्दत के लिए उसके अहकाम थे या तालीमात थी, तो उसका फिर हमेशा के लिए बाकी रखना ये भी कोई ज़रूरी नहीं था। और कुरान अजीम क्योंकि क़यामत तक बाकी रखना अल्लाह ताला की मंशा थी, क्योंकि हमारे नबी आखिरी नबी हैं और आप पर जो अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ उसके बाद अल्लाह का कोई कलाम नाजिल नहीं होने वाला था। तो लॉजिक भी ये कहता है कि आखिरी किताब को क़यामत तक सेफ रखा जाए,
और इससे बचाया जाए कि कोई उसमें मिलावट करे, और वो किताब ऐसी हो कि उसकी सिमिलर कोई किताब ना बनाई जा सके। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक की हिफाजत का कई तरीके से एहतमाम किया, जिसमें एक तरीका यह भी है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे इसको याद कर लेते हैं। आज कुरान को बाय हार्ट याद करने वाले जितने हैं, हमारा चैलेंज है कि दुनिया में किसी किताब के इतने हाफिज नहीं मिलेंगे, एक दो मिलेंगे, बाकी नहीं। ये अल्लाह पाक की कुदरत का अजीम इजहार है कि अरबिक हमारी यानी इंडियंस की मदर टंग भी नहीं, लेकिन अल्लाह ने कुरान में ऐसी बरकत रख दी है क्योंकि इसको हिफाजत फरमानी थी कि पूरी कुरान हमारे छोटे बच्चे भी याद कर लेते हैं। अगर कोई इस्लाम की सच्चाई समझना चाहे ईमानदारी से, तो यही एक दलील काफ़ी है कि कुरान एक सही किताब है, कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए रब ने इसको याद करना आसान कर दिया। तो जब ये किताब सच्ची है तो इसकी बातें भी सच्ची होंगी, और जब इंसान इसको पढ़ेगा तो मालूम होगा कि इसमें अल्लाह के बारे में भी अकायद मौजूद हैं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर भी है, और दूसरे जो ज़रूरी अकायद बिलीफ्स हैं वो कुरान में बयान कर दिया गया। और जो शख्स उन बिलीफ को मान लेगा वो इंशाअल्लाह इस्लाम में ज़रूर इंटर हो जाएगा। तो मालूम हुआ कि अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा हमें नहीं दिया बल्कि अपने जिम्मे करम पर रखा है। तो बताइए कौन कुरान में चेंजेस कर सकता है? लिहाजा ये अकीदा रखना वाजिब है कि जिस तरह से कुरान नाजिल हुआ वो क़यामत तक उसी शक्ल में रहेगा, उसमें तब्दीली नहीं हो सकती। अगर कोई ये कहे कि कुरान में कोई आयत या एक वर्ड भी चेंज कर दी गई है तो वो यकीनन काफिर है, क्योंकि वो इस आयत का इनकार करने वाला हुआ। कुछ बातें जो नबी के मुतालिक है। नबी अल्लाह का मुकर्रब बंदा है, वो कभी खुदा की नाफरमानी नहीं करता, हर छोटे बड़े गुनाहों से दूर रहते हैं, हर उस काम से दूर रहते हैं जो मुरव्वत के खिलाफ हो, जैसे झूठ, धोखा, गाली गलौज करना वगैरह। मखलूक में सबसे आला दर्जा नबियों का होता है। अल्लाह उनको हर ऐसी बीमारी से बचाता है जिससे लोग घिन खाए, क्योंकि नबियों को लोगों के पास जाकर दीन की तबलीग करना होता है। उनकी अक्ल आम इंसानों से कहीं ज़्यादा तेज़ होती है। दीन की तबलीग में उनसे गलती मुहाल यानी नामुमकिन है। हर नबी की ताज़ीम करना यानी रिस्पेक्ट करना फ़र्ज़ है, और किसी एक नबी की भी गुस्ताखी, अपमान करना या उनको झुटलाना कुफ्र है, यानी ऐसा करने वाला मुसलमान बाकी नहीं रहता। मौजिज़ा, नबियों को अल्लाह ताला ऐसी ताकत देता है जिससे वो ऐसे काम कर लेते हैं जो आदतन करना इम्पॉसिबल होता है, और उस जैसा काम बाकी लोग ना कर पाएं। ऐसे काम नबी अपने नबी होने के प्रूफ के तौर पर करते हैं। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक छड़ी थी, जब आप उसको ज़मीन पर डाल देते तो वो बड़ा सांप बन जाता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को अल्लाह ताला के हुक्म से ज़िंदा कर देते थे, अंधों की आंखें ठीक कर देते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद पर उंगली से इशारा किया तो वो 2 टुकड़े हो गया। एक जगह पानी की कमी जब लोगों ने पेश की तो आपने अपनी उंगलियों से पानी की धारा निकाल दी और लोगों ने खूब पिया। तो ये सब नबियों के मोजज़ात थे। और अगर इस किस्म के काम नबी के अलावा किसी मोमिन मुसलमान से हो तो उसे करामत कहते हैं। इल्म गैब, अल्लाह ताला नबियों को गैब का इल्म देता है। गैब यानी वो नॉलेज जो छुपी हुई है, जैसे जन्नत, जहन्नम, फरिश्ते, जिन, आखिरत वगैरह। गैब उस चीज़ को कहते हैं जिसे हम अपनी 5 सेंसेस से या अपनी अक्ल के ज़रिए ना जान सके। 5 सेंसेस यानी देखना, सुनना, छूना, सूंघना, चखना, ये 5 तरीके होते हैं किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के। इसी तरह हम अपनी अक्ल के ज़रिए, अपने दिमाग के ज़रिए कोई इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट कर सकते हैं किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, जैसे माइक्रोस्कोप। इसके ज़रिए हमने माइक्रोब्स के बारे में जान लिया तो बैक्टीरिया, वायरसेस ये सब गैब न रहा। इसी तरह हम सूरज, चांद को देख सकते हैं, एप्पल को खा के बता सकते हैं कि ये कौन सा फल है, चाहे हमारी आंखें बंद हो। अब इनके अलावा जो चीज़ें हैं जिसे हम न छू कर मालूम कर सकते हैं, न देख कर, न सुन कर, न चख कर, न सूंघ कर, और न ऐसे डिवाइसेस बना सकें जिससे उन चीज़ों के मौजूदगी का इल्म हो, उसे गैब कहते हैं। जैसे फरिश्ते, जिन्नात, खुद अल्लाह ताला जो सबसे बड़ा गैब है, हेवन, हेल, कब्र में जाने के बाद के मामलात, आखिरत वगैरह, ये सब गैब की बातें हैं।
और जो शख्स इन बातों के बारे में जानता है, नॉलेज रखता है, उसको इल्म गैब का जानने वाला कहा जाता है। अल्लाह ने इल्म गैब अपने नबियों को दिया, तो जितना इल्म गैब अल्लाह ने अपने नबियों को दिया उतना इल्म गैब नबियों के पास है। और अल्लाह का इल्म ज़ाती यानी पर्सनल है, और नबियों का इल्म अताई है यानी अल्लाह ने दिया है। नबियों के अलावा अल्लाह के वलियों को भी इल्म गैब होता है, मगर उनको नबी के ज़रिए से इल्म दिया जाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, जय हिंद।